current, current and electricity. So, what do you know about current and what do you know about electricity? Yes, Safia. It's a type of energy. Current is a type of energy. No, ma'am, electric current. Electric energy, electrical energy. Yeah, electricity. Electrical energy is a kind of electricity. Okay. Yes. So it's a form of energy, right? So Yes. and what do you know else? That how does the current flow? It What is flows the from reason? positive to negative. Positive, negative, due to the electrons, right? Due to the electrons. When electrons go travels from one like left to right, then current will travel from this. What will the direction Ma'am, of current? This or this? they travel from positive to negative, right? What travels from positive to negative? Electric current. Electric current travels from positive to negative, right? So what is the direction of current? What is the direction of sorry? What is the direction of electron? From where does the electron starts and where does it stop? And it starts in Electron positive. start from negative terminal to positive terminal, right? Electron travels from negative to positive, then negative to positive, right? Every time. And current flows in opposite direction of the current. In opposite direction of the electron. Current flows in opposite direction with the electron. Electron travels from negative to positive. Current travels from positive to negative. Okay. So the direction of current that we show in the electric circuit is from this to this. Okay. It goes from this to this. Right. तो ये तो करंट का डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक करंट तो कभी करंट तुम उससे निकाल के देखी हो लाइक when you rub pencil when you rub pencil on your hair in your hair pencil को अगर rub करो hair में तो what happens can it attract the small pieces of paper doesn't it attract small pieces of paper have you ever seen this have you ever done this experiment Yeah, activity ma'am, there was an experiment like you have to take a balloon and rub it against your हाँ hair, and after some time it will stick to the hair. हाँ after some time it will means if you rub it in your hair or something so what it will do it will attain some of the charge okay it will attain some of the charges inside them gets activated तो क्या हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर में ट्रेवल करने लगते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए वो क्या हो जाता है बस थोड़ी देर के लिए होता है ये चीज थोड़ी देर के लिए क्या होता है वो चार्ज जाता है क्योंकि वो पीस ऑफ पेपर को क्या कर सकता है अट्रैक्ट कर सकता है ठीक है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है तो वो अट्रैक्ट कर दिया तो और बस थोड़ी देर के लिए वो चार्ज रहता है और फिर उसके बाद वो क्या हो जाता है खत्म जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ओके नाउ what's written here let's see electricity is an essential part of life in today's world अब इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो दुनिया क्या है कुछ भी नहीं है राइट पहले तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना ही रहते थे लोग लेकिन अब जो है इलेक्ट्रिसिटी है तो सब कुछ है वरना कुछ भी नहीं इट्स कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी it is being used in almost every sector of modern society like household commercial transport industry to make life faster and easier right तो इसका इसका यूज होता है कि लाइफ जो है वो फास्टर हो जाए और इजियर हो जाए हर चीज जो है फास्टर और इजियर हो जाए तो इसलिए ही यूज होता है ठीक है करंट जो है बहुत चीजों को इजी बना दिया करंट एंड इलेक्ट्रॉन जो है जो बहुत चीजों को क्या कर दिया इजी बना दिया जो इलेक्ट्रॉन तो बहुत पहले से था राइट बहुत पहले से था जब से दुनिया है तब से था इलेक्ट्रॉन लेकिन साइंटिस्ट लोग अब जान पाए हैं मतलब कुछ 100 साल पहले जान पाए हैं कि क्या होता है करंट क्या होता है कैसे लाइट जो है वो काम करती है कैसे हम करंट कैसे हम इलेक्ट्रॉन का यूज कर सकते हैं करंट को क्या करने के लिए करंट पैदा करने के लिए राइट कैसे हम हाउ टू यूज इलेक्ट्रिक चार्जेस सो एज टू वी कैन गेट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन गेट इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम ओके तो हम ये जान पाए हैं इट इज अ फिजिकल इंटाइटी विच इज defined by excess or deficiency of electrons on a body. Excess or deficiency of electrons on a body. Electric charges. A body is said to be a negative charge if it gains electrons, just like ebonite rod. तो अगर कोई body, if a body has gained electrons, right? Has gained electrons and has got negatively charged, वो तो क्या हो जाता है जैसे कि एग्जाम्पल क्या होता है मीन्स अगर अगर कोई बॉडी क्या कर रही है नेगेटिवली चार्ज हो जाती है किस लिए होती है क्योंकि क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है ओके बिकॉज इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स तो एग्जाम्पल क्या होता है एबोनाइट रॉड जो होता है वो क्या होता है मेनली इट 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 गेट्स नेगेटिवली चार्ज ओके एंड ग्लास रॉड होता है तो वो When यूजुअली it gets यूजुअली negatively charged, it means that it gains electrons. या
Yeah, and if it loses electrons, then it gets positively charged. Okay, if a body loses electron means इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, राइट. अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो नेगेटिवली चार्ज जाएंगे. देयर इज नो रोल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज जाएंगे. ठीक है, तो देयर इज नो रोल ऑफ पॉजिटिव चार्ज कुछ नहीं करता. सिर्फ और सिर्फ सब काम किसका है, इलेक्ट्रॉन का काम है. ठीक है, सब काम इलेक्ट्रॉन का. इलेक्ट्रॉन ही इधर से उधर जाता है, इधर से उधर भागता है, कभी इसमें रहता है, कभी उधर जाता है. तो इलेक्ट्रॉन ही होता है जो कि एक्टिव होता है हमेशा, प्रोटॉन नहीं होता. क्योंकि ऑलरेडी तुम केमिस्ट्री में पढ़ चुकी हो कि प्रोटॉन किसमें होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, राइट. प्रोटॉन वेयर डज द प्रोटॉन रिसाइड्स, inside the nucleus. Inside the nucleus there are two what there are two things, that is proton and neutrons, right? Subatomic particles. And atomic particles, subatomic particles, right. So proton and neutron, these are the subatomic particles which are present inside the nucleus of an atom, and electrons revolves around the nucleus. Okay, there are many of the orbits in which the electrons resides, 2, 8, like this, right. 2, 8, 8, 16 and 32 whatever. तो ये होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर होते हैं, वही जो उछल के बाहर आ जाते हैं, एक्स्ट्रा अंदर आ जाते हैं, यही सब काम करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन ही होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट में मदद करता है. ठीक है, ओके. तो अब देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो होता है, तुम्हें पता होगा, बताओ, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? I don't know that. इट्स 1.6 into 10 power minus 19 कॉलम. और कॉलम जो होता है वो क्या होता है, चार्ज का SI unit of. ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है. ठीक है, ये कॉलम है जिसको कि हम सी से डिनोट करते हैं, जो कि क्या होता है, Does it denote positive or negative charge? this is your negative, this will be negative, and for positive the same charge will be there, only with the positive sign. It has plus 1.6 into 10 power minus 19 column. Okay, charges are the same, fine, charges are same, there is just difference of the charges. Okay, while the numerical value is the same. Okay, magnitude is the same. So charge on one electron का चार्ज होता है 1.6 into 10 power minus 19. Okay, possible value of और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है. Okay, it has no charge, न्यूट्रॉन is neutral. Okay, अब देखो जो पहला फॉर्मूला तुम इसमें देखोगी, the very first formula that we will study in this chapter is Q is equal to Ne. That is Q is equal to Ne. Fine, Q is equal to Ne. This is the very first formula that we study in this chapter. तो क्या होता है कि Q is what? Charge? Yes or no? Q is the charge. Okay, Q is called the charge, and electron is also the what? Electron is also the magnitude of charge. तो जो charge क्या होता है, ये भी तो charge of electron है, ये charge of electron. और ये n क्या है, number of electrons. कितने number of electrons हैं वही होता है क्या, चार्ज. कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या होता है, चार्ज होता है. ठीक है, ओके. कितने द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतना चार्ज होगा, राइट. द चार्ज ऑफ द होल सर्किट विल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यस सत्या, माय वॉइस इज ब्रेकिंग. I was asking what is Q? व्हाट इज Q? Q इज द चार्ज. चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से कि कितने चार्ज हैं. चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से कि कितने चार्ज हैं, right? And why is it Q? Like, does it stand for something? What? Why is it Q? Does it stand for something? No, just like this करंट को डिनोट करते हैं हम लोग I से, right? करंट को डिनोट करते हैं I से, C से तो करते नहीं है, I से करते हैं करंट को. ठीक है, तो इस तरह हम लोग Q को, चार्ज को जो है Q से करते हैं डिनोट. ओके, तो ये डिपेंड होगा, आई गेस ये हमको बहुत अच्छे, ये हमको याद नहीं है. वैसे तुम अच्छा पूछी हो कि चार्ज को हम लोग Q से ही क्यों डिनोट करते हैं. Q बड़ा भी हो सकता है, Q छोटा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है. ठीक है, sometimes we write Q in small letter and sometimes we write Q in capital letter. So here you are seeing that it's a small letter, so it doesn't matter that you use small letter or capital letter. तो हमें नहीं लगता, I don't think so कि ये किसी एक साइंटिस्ट पे होगा, because if साइंटिस्ट पे होता तो ये जरूर क्या होता, कैपिटल लेटर से ही इसे डिनोट करते, राइट. यही राइट, नॉर्मली यही होता है कि अगर ये उससे होता, साइंटिस्ट की वजह से होता, तो ये जरूर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर से डिनोट करते. बट इट्स नॉट लाइक दैट. वी यूज कैपिटल लेटर either capital or small. Okay, it's not like that कि जो दे दिया गया तो दे दिया गया. It's like that कि पहले से मान लिया गया, चलो ये कर लेते हैं, करंट को I से डिनोट कर लेंगे और चार्जेस को Q से डिनोट कर लेंगे, तो ये हो गया Q अमाउंट ऑफ चार्जेस. तो
तो ये कोई वो बात नहीं है कि हम ये क्यों करते हैं, फाइन, ओके। तो ये हो गया Q इज इक्वल टू एन ई, ओके, Q इज इक्वल टू एन ई। तो ये दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला एंड व्हाई इज इट सो, क्योंकि Q क्या है, चार्जेस है। अब चार्जेस कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चार्जेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितना चार्ज फ्लो करेगा, कितना चार्ज फ्लो करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, ठीक है। नाउ अनदर फॉर्मूला इज देयर, Q इज इक्वल टू आई टी, अभी हम लोग ये पढ़ेंगे, Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी, or you say I is equal to Q by T, you can say this also, I is equal to Q by T, why I is equal to Q by T, कि I is equal to Q by T, कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं कितने टाइम तक, तो दैट इज द करंट, दैट इज द करंट, कितना चार्ज कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, तो वो क्या होता है, करंट होता है, उसे करंट कहते हैं, ठीक है। द चार्ज दैट इज flowing per unit time, that is known as what, that is known as current, electric current, ये है मेन हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, SI यूनिट जो होता है वो, अच्छा अभी यहाँ पर हम लोग आ गए, इट इज डिफाइंड, देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम मींस पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट, तब हम उसे कहते हैं इतना इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो कर रहा है, दैट इट मींस दैट हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ओके। एंड यू कैन आल्सो राइट इट लाइक already we are knowing that Q is equal to Ne, right, from the first formula, already we are knowing that Q is equal to Ne, so can we write it like Ne upon T, can we write it like this, yes or no, can we write it like this, Yes, ma'am. yes, Yeah. तो Ne upon T, तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, अगर मान लो तुम्हें बोल रहा है कि दिया हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, टाइम दिया हुआ है, तो क्या तुम करंट नहीं निकाल लोगे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी नोइंग अबाउट ई के बारे में तो हम ऑलरेडी जान रहे हैं, दैट इज 1.6 into 10 power minus 19 कॉलम, this we are already knowing, right, this we are already knowing, only the given thing is your n, number of electrons and time. If you are giving these two quantities, that you can easily find the electric current through the circuit, yes or no, yes no, Yes, ma'am. तो अब देखो, it is defined as the rate of flow of electric current through any cross section of a conductor, cross section of a conductor means like this is your conductor, this is your wire, and जितने टाइम तुम इतना क्रॉस सेक्शन इसका निकाल ली, इतने से जितना तुम्हारा करंट बह रहा है उतने की बात हो रही है, ठीक है, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन जितना भी ले लो तुम, ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इफ Q amount of charge flows through a conductor in T time, it's I, if Q amount of charges flows through a conductor in T time, तो क्या हो जाएगा, I is equal to Q by T, that is Ne by T, okay, that is Ne by T। और एक चीज होता है कि what is क्वेश्चन आता है कि what is 1 ampere of current, define 1 ampere of current, define 1 ampere of current, okay। अब तुम इसको कैसे डिफाइन करोगी, can you tell me सफिया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 1 ampere of current, how can you define it, tell me, Safia, are you there, okay, so can you tell me if तो fine, तो हमें बता देते हैं, तो ये कैसे होगा, if you cannot unmute then, तो are you knowing this or not, just you message me, are you knowing this or not, means do you have any idea, okay, Yes, ma'am. You can continue. okay, so can you define 1 ampere of current, I don't know. दोनों, ओके फाइन, तो अब चलो करते हैं तब 1 एम्पियर ऑफ करंट कैसे हम लोग डिफाइन करें, ओके। तो देखो क्या करेंगे हम लोग कि वी आर हैविंग फॉर्मूला दैट इज I is equal to Q by T, राइट, I is equal to Q by T, नाउ वी हैव टू फाइंड 1 एम्पियर ऑफ करंट, तो अगर हम इसको 1 कर दें, सॉरी 1 एम्पियर नहीं, अगर हम इसको 1 कॉलम कर दें, अगर हम इसको 1 सेकेंड कर दें, देखो ये जो कॉलम होता है वो कॉलम साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा है, राइट, तो we always use this in capital letter, तो जो साइंटिस्ट के नाम पे होता है we always use that, generally I have seen that we always have used the units or anything in the that is in the capital letter, okay, ampere is also in honor of the name of the scientist, so ampere also we use in capital letter always, okay. So I is equal to Q by T. We always have seen that we are knowing that I is equal to Q by T. So if 1 coulomb of charge flows through a circuit
in 1 second. तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? 1 ampere of current. 1 ampere of current. If 1 coulomb of charge flows through a circuit in 1 second, then what is it? It's called 1 ampere of current. 1 ampere of current is defined as when 1 unit or 1 coulomb of charge flows through a circuit in 1 second. तो उसे कहते हैं हम लोग 1 ampere of current. See, smaller units of current are milliampere. Charge is 1 coulomb. The SI unit of electric charge is ampere. It is a scalar quantity. When 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, then the electric current flowing through it is said to be 1 ampere. Got it? Got it or not? Yes or no? Tom, what does it mean? Like it is written when it flows through a cross section of a conductor. Well, wait. What's the color of this one? Good color. One coulomb of charge. Yes. What did you say? What did you say? What does Satya? it mean when it is written that it flows through a cross section of a conductor? अभी वही बताया ना, क्रॉस सेक्शन मींस व्हाट? क्रॉस सेक्शन मींस थ्रू अ वायर. एक पर्टिकुलर वायर से मान लो इतना बड़ा वायर है तुम्हारा. ओके, इतना बड़ा वायर है तुम्हारा, ठीक है. यहाँ पर से जो है करंट बह रहा है. अब ये नहीं कह रहा कितने मीटर तक बह रहा है. इसमें मीटर का कोई बात नहीं है, ठीक है. जितना भी मीटर हो ये, ठीक है. इससे कोई बात नहीं है. तो इट मीन्स दैट 1 सेकेंड में ये कितना, 1 सेकेंड में मान लो यहाँ तक बह रहा है, ठीक है. 1 सेकेंड में ये यहाँ तक आया है मान लो, ठीक है. हाँ, 1 सेकेंड में ये यहाँ तक आया है. ये जहां तक भी जाए इससे कोई मतलब नहीं है. ओके, 1 सेकेंड में ये कितने चार्जेस जो है इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं, मींस 1 सेकेंड में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, वो क्या होता है? करंट होता है, राइट. सॉरी नेगेटिव ना. वो क्या होता है? करंट होता है. कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो करंट होता है. अब अगर बोल रहा है कि एक कोलम्ब ऑफ चार्ज, अगर एक कोलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा है, जितने भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, एक कोलम्ब चार्ज में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो, एक कोलम्ब चार्ज अगर फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में मान लो यहाँ तक गया, और जितने भी चार्जेस होंगे इतने बीच में जितने भी चार्जेस होंगे वो क्या होंगे? वो कहलाएगा कि वो सर्किट में कितना करंट बह रहा है? 1 एम्पियर करंट. समझिए बात. When 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, 1 सेकेंड में जितना भी हो जा रहा है, अगर वो एक कोलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है तो कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट flowing through the circuit is said to be कि वो कितना है? 1 एम्पियर. ठीक है सफिया. Yes, ma'am. तो एक इस टाइप का क्वेश्चन भी होता है. If you are given, see, if you are given 1 coulomb of charge, okay, if you are given 1 coulomb of charge, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है. ये है क्वेश्चन तुम्हारा. You are given charge 1 coulomb. पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं. Charge 1 coulomb and what? तो बताओ number of electrons कितने होंगे? What will be the number of electrons? Can you draw number of electrons from the given charge as 1 coulomb? Can you tell me the number of electrons? Can you tell me which formula to use? Like 1 coulomb is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 electrons. So this is the charge of electron. This is the charge of electron, right? Oh, okay. तो हमें पता करते हैं How is it measured? How is it like? It is 1. You are given C. Sorry, you are given Q. You are given E. You are already knowing. You have to draw the value of N. So how can you find? Is there any formula relating these 3 terms? Is there any formula? I don't know it now. You don't know the first formula that we studied just now. Q is equal to NE, isn't it? Okay, yes. Yes, na. 1 coulomb we are given. Yes, 1 we are given. Okay. We have to draw the N. We have to find for N. We have to work on this question for N. E we are already knowing as 1.6 into 10 power minus 9. We will do 1 by 1.6. Yes, just we have to do N is equal to 1 upon 1.6 into 10 power minus 19 को हम लोग ऊपर ही लिखते हैं. 10 power 19 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना. तो हम लोग लिख देते हैं इसको 10 into 10 power 18. Can we write it like this? Yeah. Yes. तो इसको हम लोग 100 into 10 power 18 upon 16. Can we write it like this? Yeah. हाँ, तो ये हो जाएगा करीब 4 से काट देते हैं 4 हो जाएगा, ये काट देते हैं 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा. So it will become 25 by 4 into 10 power 18. So it will become 4 6 24.25, 6.25. 6.25 into 10 power 18. This will be having no unit because this is number. Okay, so इतने number of electrons होंगे कितने में? 1 coulomb, right? इतने number of electrons होंगे
1 कोलम में। तो समझी? तो अगर तुम्हें अब करंट भी निकालना है, I इक्वल टू क्यू बाई टी वाला करंट निकालना है कि 1 कोलम तुम्हें दिया हुआ है, 1 कोलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, तब भी तुम क्या कर सकती हो, क्या हो जाएगा, ये तो आ रहा है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। लेकिन कितने, तो फिर इसकी जगह तुम क्या लिख सकती हो, इस 1 कोलम की जगह तुम एनई भी लिख सकती हो, राइट? या फिर 1 कोलम का मतलब तुम्हें यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू दिस। तो अगर तुम एनई लिख भी दो, तो फिर से तुम्हें 1 ही मिलेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अगर ये 1 कोलम है तो कितने होंगे, 6.25 इंटू 10 पावर 18, एंड इलेक्ट्रॉन के चार्जेस भी लिखने होंगे तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। समझ आ रहा है ना? तो टी 1 है, ये तो टी 1 है, तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, ये तो हम देखते हैं क्या निकाल रहे हैं। Why have you multiplied them both? तो व्हाट इट विल बिकम 6.625। हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर कोलम, अगर हम क्यू का यूज करके दें, It's just 6.25, right? And you have written 6.625. 6.625 था, it's 6.25 ना। अच्छा, यहाँ पर 6.25 and into 1.6 and it will become minus 19, yes or no? Minus 1 ना, 18 minus 19 it will become minus 1 ना। Yeah. तो अब क्या हो जाएगा, अगर हम इसको करना चाहें 0.16, 6.25 into 0.16 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कितना आ जाएगा अगर हम इस वे में देखा जाए तो? That will be 1, I think. ना 1 हो जाएगा ना? Yeah. 1 होना भी चाहिए। 6.25 into 0.16, देखते हैं। 6 30, 2 6 12 13 14 15, 1 2 6 6 36 37, 5 2 6। अरे वाह, oh my god, we have got this, we have done this। हम पहली बार इस चीज को किए हैं, पता है, पहली बार इस चीज को, हम कभी ऐसे किए ही नहीं थे। हमें अभी अभी मेरे दिमाग में चलो ऐसे करते हैं, एन नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली वो तो आएगा ही आएगा 1 ना, क्योंकि क्या क्या हम कह रहे हैं, Yeah, because you just divided it by 1. हाँ, 1 कोलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड, तो 1 आना ही आना है, क्योंकि ये आई को हम डिफाइन ही कर रहे हैं कि 1 एम्पियर करंट क्या होगा, और 1 कोलम ऑफ चार्ज ले रहे हैं, 1 कोलम ऑफ चार्ज ले रहे हैं, तो एन भी उस हिसाब से ले रहे हैं, क्योंकि एन हम ले लिए हैं 6.25 इंटू 10 पावर 18। ओके, इतने इतने क्या होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिल गया हमको, मल्टीप्लाई करके ये मिल गया 1, ठीक है। तो ये इसी तरीके से हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. चैप्टर अभी तो ये स्टार्टिंग है ना, अब जब रेजिस्टेंस आएगा तो बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जब वो सर्किट बनाएंगे हम लोग और फिर उसमें रेजिस्टेंस देखेंगे कितना आ रहा है सीरीज और पैरेलल में ना, तो बड़ा मजा आएगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग पहले ही जान चुके हैं, ये अपोजिट इनटू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। So how will we define electric charge? इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ लिखा तो है, it is a physical entity which is defined by excess or deficiency of electrons on a body। excess हो जाए या फिर deficiency हो जाए, अरे जैसे कि उसमें पढ़ी होगी ना केमिस्ट्री में, लाइक आयोडीन माइनस हो जाता है, F माइनस हो जाता है, राइट, Na प्लस हो जाता है, चार्ज इसका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, इसका चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्यों नेगेटिव हो गया, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया। क्यों पॉजिटिव हो गया Na, क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 281, यही होता है ना, 281 यही होता है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, क्योंकि 1 है, क्योंकि इसको अपना ऑब्जेक्ट पूरा करना है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन भाग गया, तो एक इलेक्ट्रॉन भाग गया, तो इसमें एक ज्यादा क्या हो गया, पॉजिटिव ज्यादा हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा एक एटम में इक्वल होते हैं, राइट। एक एटम में हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। चार्जेस कब आते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। जाते कब हैं, जब जब 3 से जब 4 से कम होता है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जाते हैं। आते कब है, जब इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज्यादा होता है तो वो आता है, ठीक है, समझी ना। ये तो तुम्हें पता ही होगा, उसने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, 281 होता है। एल्यूमिनियम भी 3+, क्यों, क्योंकि 283 होता है। अब 3 है, अब ये 5 बुलाए, ये तो इसके लिए कठिन हो जाएगा। ये क्या करता है, 3 अपना दे देता है, कहता है ठीक है तुम ले जाओ 3, तो ये 3 तो ले जाता है, तो ये क्या हो जाता है, 3+ हो जाता है। मतलब इसका मतलब 3 तो इसके पास 3 प्रोटॉन जो है वो ज्यादा होगा इसके पास, इसका मतलब ये बात, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये चार्ज यही होते हैं, या तो फिर इलेक्ट्रॉन जाए, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या फिर इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है। तो ये 2 चीजें हो सकती है चार्ज को बताने के लिए। तो यही चीज ये बोल रहा है कि इट इज अ फिजिकल एंटिटी व्हिच इज डिफाइंड बाय एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो एक्सेस हो जाए इलेक्ट्रॉन का या फिर डेफिशिएंसी हो जाए इलेक्ट्रॉन का। A body is said to be negatively charged if it gains electron, right? And if a body is said to be positively charged if it loses electron. Okay? समझ में आ गया होगा? SI unit
इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम होता है जो कि C से हम डिनोट करते हैं। द टोटल चार्ज एक्वायर्ड बाय बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड, जो कि अभी हम बताए हैं Q इज इक्वल टू एन। यहाँ पे फॉर्मूला ये लिखा नहीं है, लिख देना चाहिए था, जिसे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी आ सकता है, इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं, ठीक है, इसको बोल्ड करते हैं, या फिर क्वांटाइजेशन, इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, समझ में आया? इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कि ये AQ इज इक्वल टू एन नहीं होता है, वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। यहाँ पे लिख देते हैं। One electron will be in हाँ, the charge on one electron will be in negative. charge of one electron will be negative, obviously. Like, can you scroll up? Can we? Can you please scroll upwards? I didn't get you. What you say? Let me. हाँ, बोलो अब. Tell me. What you saying? Can we what? Please scroll upward. Scroll upward. Okay. Where? Up to where? The first one. Yeah. And here, the one that you have underlined in pink, it's written 1.6 into 10 to the power minus 19. But Huh. that should be in negative, right? Yes, that will be in negative. Okay. That will be in negative. If that need not to mention always, because in the question when we use 1.6 into 10 power minus 19, तो हम लोग we do not write negative part. Okay, because electric current define करते हैं तो वो negative में नहीं होता, वो negative में नहीं होता, right? तो ऐसे डिनोशन है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो नेगेटिव होते हैं, इसलिए इसके नेगेटिव चार्जेस होंगे, और प्रोटॉन जो होते हैं उसको पॉजिटिव में होते हैं, प्लस 1.6 into 10 power minus 19. तो यू कैन राइट इट हियर लाइक कि ये जो हो जाता है माइनस, कैन राइट इट हियर. ओके, you can write it here minus 1.6 into 10 power minus 19. So it's not very important to write it, but when you if you'll write it, then it will be good. Okay, so and Q is equal to Ne. What does it mean? It is quantization of charge. It's also known as quantization. Either someone uses Z, someone uses S, no matter. Quantization of charge. कितनी क्वांटिटी है चार्ज की वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को. called Q. Yes, Because of quantization. Is that why it is called Q? let me know. हम अभी ना वो करते हैं, सर्च करते हैं कि क्यों, क्योंकि ये तुम्हें बॉदर कर रहा है ना, ये क्यों क्यों कर रहा है, अब हमें भी बॉदर कर रहा है. Let me just search. Why is the charge unit why do we denote, right? Why do we denote? कभी हम ये सोचे नहीं ना, इसलिए हम ये देखे नहीं. Denote charges by, शायद कोई reason of charges by Q. ये क्या बोल रहा है? This predominance or deficiency of electrons, the principle we know as charge, was also called the quantity of electricity. E referred to electrons, so Q after the first word of that phrase came to represent charge. तो ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से हो गया है चार्ज, क्योंकि Q जो हो रहा है वो क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है. ठीक है, क्वांटिटी हो रहा है, Q फॉर क्वांटिटी, इसीलिए वो Q हो गया है. तो तुम सही कह रही हो कि जो क्वांटाइजेशन, तो इसी वजह से ये नाम पड़ा होगा, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है उसकी वजह से Q पड़ा है, इसका पहला, इस फ्रेज का पहला लेटर. ठीक है, ये तुम सही कह रही हो. यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, तो यू कैन ऑल्सो थिंक इट लाइक दैट कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, उसी से हम लोग के पास क्या आया है, Q आया है, उसी को Q कहा गया. ठीक है, अब तो बॉदर नहीं करेगा. ठीक है, छोटी छोटी चीज कभी कभी परेशान करती है, हमें नहीं की थी ये चीज, इसलिए हम कभी पूछे नहीं जाने कि क्यों कहा जाता है इसको. चलो, हमें भी एक चीज, नई चीज पता चल गई. चलो, आज के लिए तो इतना ही ठीक रहेगा ना. अब हम लोग कल पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स, एंड देन वी विल गो फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है.